السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ایک بادشاہ تھا، اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اس وجہ سے وہ بہت غمگین رہتا تھا اور سوچا کرتا تھا کہ میرے بعد اتنی بڑی عالی شان بادشاہت کا مالک کون ہوگا۔ اس فکر میں وہ کئی وقت کھانا بھی نہیں کھاتا تھا اور دربار میں بھی نہیں جایا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے وزیر نے اس کے رنجیدہ رہنے کا سبب پوچھا۔ بادشاہ نے کہا، میں اس بات سے فکر مند رہتا ہوں کہ میرے کوئی بال بچہ نہیں، اگر میں مر گیا تو میرے بعد میرا ملک اور خزانہ کون سنبھالے گا؟ وزیروں نے کہا، آپ بالکل نہ گھبرائیں اور اللہ کے فضل سے نا امید نہ ہوں۔ اسے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو اس سے مایوس امیدوار۔ ہم سب ابھی کسی فقیر کی تلاش میں جاتے ہیں، ان سے دعا کرائیں گے اور اللہ کی درگاہ سے امید ہے کہ آپ کی دل کی مراد پوری ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ کو تسلی ہوئی اور اس کا دل مضبوط ہوا، اور سب وزیر فقیروں کی تلاش میں چاروں طرف نکل پڑے۔ سب سے بڑا وزیر بھی ایک طرف کو چلا گیا۔ چلتے چلتے اس کی نظر چھوٹی سی ایک باغیچی پر پڑی۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ وہ اس میں جا اترا، کنویں سے پانی پیا اور تھوڑی دیر آرام کیا۔ جگہ اچھی تھی مگر کوڑے کباڑ سے خراب ہو رہی تھی۔ وزیر نے وہاں جھاڑو دی اور کنویں سے پانی نکال کر چھڑکاؤ کیا۔ صفائی سے فارغ ہو کر اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ یہ باغیچی کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک غار کی طرف جا نکلا جو اسی باغیچے میں تھا۔ اس غار میں ایک بوڑھا فقیر بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ وزیر نے اسے سلام کیا اور جب فقیر نے آنے کا سبب پوچھا تو اس نے اپنا مطلب بتایا اور بادشاہ کے لیے اولاد کی دعا کروائی۔ فقیر نے اسے ایک سونٹا دیا اور کہا، یہ لے، اسے اس باغ کے کسی آم کے درخت پر مار، ایک آم جھڑے گا، بس وہی لے کر تم واپس چلے جانا اور بادشاہ کی بیگم کو کھلانا۔ خدا کے فضل سے امید ہے کہ بادشاہ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا۔ وزیر نے ایسا ہی کیا۔ وہ سونٹا تو فقیر کو واپس دیا اور خود آم لے کر بادشاہ کے پاس آیا اور فقیر کا پیغام سنایا۔ بادشاہ خوشی خوشی محل میں پہنچے اور بیگم سے کہا، یہ آم کھا لو۔ بادشاہ بیگم نے وہ آم لیا اور کھا لیا۔ خدا کی قدرت سے 9 مہینے کے بعد بیگم کے ہاں خدا نے لڑکا دیا۔ محل میں بڑی خوشی منائی گئی، خوب جلسے کیے گئے، غریبوں کو اس قدر خیرات دی گئی کہ وہ مالا مال ہو گئے۔ مگر افسوس، بچہ پیدا ہونے کے 6 دن بادشاہ بیمار ہو کر مر گئے۔ اس کا صدمہ بیگم کو بہت ہوا۔ وہ کہتی تھی کہ ہائی، یہ کیسا منحوس بچہ پیدا ہوا کہ میرا پیارا خاوند دنیا سے چل بسا۔ 1 سال کے بعد وزیر نے بیگم سے کہا، اب تم مجھ سے بیاہ کر لو۔ یہ بات بیگم کو بہت بری لگی، اس قدر بری لگی کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر اور بچے کو لے کر پردیس میں نکل کھڑی ہوئی۔ چلتے چلتے رستے میں اسے ایک دریا ملا۔ بیگم خود بھی پیاسی تھی اور بچے کو بھی پیاس لگ رہی تھی۔ خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پانی پلایا۔ پانی کی اوک بھرتے ہی اس کے ہاتھ میں ایک لال کی گولی آ گئی۔ وہ اس نے سنبھال کر رکھ دی اور خود آگے چل پڑی۔ دور چل کر اسے کوئی گاؤں ملا۔ اس نے وہاں کسی زمیندار سے رہنے کے لیے جگہ مانگی اور ایک چارپائی بھی۔ زمیندار نے ترس کھا کر اسے رہنے کے لیے ایک جھونپڑی دے دی۔ یہ اس میں رہنے لگی۔ اس جھونپڑی میں رہتے اور کوٹ پیس کر اپنی گزارا کرتی تھی۔ سن، مجھے فلائٹ ٹکٹ بک کرنا سکھانا۔ کیوں؟ کہاں جانا ہے؟ کہیں نہیں، بس سیکھ رہی ہوں۔ اچھا، تو پہلے یہاں پر ڈیسٹینیشن ڈالو۔ ہاں، اب یہاں ڈیٹ اور یہاں نیچے نام ڈال دو، بس۔ اب بس یہاں کلک کرو اور ہو گیا، پر کرنا مت۔ ایک دفعہ گاؤں کے چوک میں بہت سارے لڑکے گولیوں سے کھیل رہے تھے۔ بیگم کا بچہ آیا اور کہنے لگا، اماں جان، باہر لڑکے گولیوں سے کھیل رہے ہیں، ہمارے پاس گولی نہیں، ہم کس سے کھیلیں گے؟ ہمیں بھی کوئی گولی منگا دو۔ ماں نے وہ لال رومال میں سے کھول کر اسے دے دیا۔ بچہ جا کر اس سے کھیلنے لگا۔ ایک بڑا لڑکا پاس کھڑا تھا۔ اس نے کہا، میاں لڑکے، لو یہ 8 گولیاں ہم سے لے لو، تم ان سے کھیلو اور ان کے بدلے اپنی گولی مجھے دے دو۔ وہ بچہ لال کی قیمت کیا جانے، جھٹ اپنی گولی دے کر اس کے بدلے 8 گولیاں لے لیں اور بہت خوش ہوا۔ وہ بڑا لڑکا لال لے کر بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ نے وہ لال بہت سے روپے دے کر اس سے خرید لیا۔
इस बादशाह की एक अकलौती और बड़ी प्यारी सी लाडली बेटी थी। बादशाह ने वो लाल उसे दे दिया। शहजादी ने इस लाल को रेशम में पिरोकर पहन लिया और बाग में अपनी सहेलियों के पास पहुंची। सहेलियां देखकर कहने लगीं, वाह, एक ही तो लाल है, हम तो जब जाने जो तुम इसके साथ के 7 लाल और मंगाकर पहनो। शहजादी को इस बात से बहुत रंज हुआ। वो बाग से वापस आकर मुंह बसोर कर लेट गई। उसकी आया ने उसकी माँ से कहा, आज शहजादी कुछ उदास हो रही हैं। माँ दौड़ी हुई बेटी के पास आई और कहा, बेटी तुम क्यों उदास हो? तुम्हें किसने कुछ कहा हो तो बताओ, मैं उसकी ज़ुबान निकलवा दूं। जो किसी ने मारा है तो उसके हाथ कटवा दूं। अगर किसी ने तुम्हें सताया हो तो उसे जान से मरवा दूं। बोलो बेटी, क्या बात है? शहजादी ने माँ से कहा, अम्मा, जो बात मैं आपसे कहूँगी आप उसे पूरा ना कर सकेंगी, इसलिए आप ना पूछें तो बेहतर है। माँ ने ज़बरदस्ती की कि नहीं, मैं ज़रूर पूरा करूँगी। तब शहजादी ने माँ से कहा, जैसा एक लाल मेरे पास है, इसी के जैसे 7 लाल और मंगा दो। मैं जब खाना खाऊंगी और जब ही पानी पीऊंगी। माँ ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है? तुम उठो, मुंह हाथ धोकर खाना खाओ पियो, मैं तुम्हें ये लाल ज़रूर मंगा दूंगी। माँ ने उससे ये वादा करके बादशाह के पास कहलवा कर भेजा कि इस जैसे 7 लाल और मंगा दो। उनके ना होने से हमारी शहजादी बहुत गमगीन है। बादशाह ने फौरन ही उस लड़के को बुलाया और उससे कहा, इसी लाल के जैसे 7 लाल हमें और ला दो, 15 दिन की मोहलत देते हैं। वो लड़का बेचारा डरा सहमा हुआ वापस आया और बादशाह के उस लड़के को बुलाया और कहा, मियाँ लड़के, अगर तुम्हारे पास इसी तरह की गोली और हों तो उसी जैसी हमें 7 गोलियां और ला दो। शहजादा अपनी माँ के पास वापस आया और कहने लगा, अम्मा, उसी के जैसी और गोलियां मुझे दे दो। माँ ने कहा, बेटा, मेरे पास और तो कोई गोली नहीं है। माँ की बात सुनकर बादशाह का लड़का उस लड़के के पास पहुंचा और बोला, मेरे पास और नहीं है। मेरी अम्मा ने वो लाल एक दरिया से निकाला था, तुम भी जाकर निकाल लाओ। उस बड़े लड़के ने जवाब दिया, मियाँ तुम भी हमारे साथ चलो, हम दोनों ढूंढेंगे। बादशाह के लड़के ने ये बात मंजूर कर ली और वो दोनों दरिया पर जा पहुँचे। देखा तो इत्तफाक से उसी तरह के रंग ढंग वाले 7 लाल और बहे चले आ रहे थे। बड़े लड़के ने कहा, लो, बस हमारा काम तो बन गया, अब चलो वापस चलें। लेकिन शहजादे ने कहा, भाई चलो इस दरिया में गोता मारकर मालूम करें कि ये लाल कहाँ से आ रहे हैं। बड़े लड़के ने बहुत समझाया कि ना जाओ, मगर शहजादा ना माना। वो तो एक बहादुर बादशाह का बेटा था। बिल्कुल नडर होकर दरिया में चला गया। मजबूर होकर बड़ा लड़का भी उसके साथ ही दरिया में कूद पड़ा। शहजादा और वो लड़का दोनों दरिया की तह में नीचे पहुंचे। जाकर क्या देखते हैं कि एक खूबसूरत औरत का सर छीके पर कटा हुआ रखा है और इसके सर से जो खून की बूंदें गिरती हैं वो दरिया में जाकर लाल बन जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत हैरान हुए। कितनी देर तक खुदा की कुदरत का तमाशा देखते रहे। थोड़ी देर बाद बहुत जोर की आंधी आई और अजीब शोर-ओ-गुल होने लगा। बड़ा लड़का तो डर कर जिस रास्ते से आया था वापस चला गया। शहजादे को इल्मे नजूम भी आता था। वो मक्खी बनकर छप्पर कट में उस सर का बाकी हिस्सा यानी धड़ रखा था उसकी नवाड़ में घुसकर छुप गया। थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि एक बहुत ही बड़ा द्यो आया। इसने क्या किया कि उस औरत का सर लेकर धड़ पर लगाया और सिराने की छड़ी पांती की। इससे वो औरत जिंदा हो गई और कलमा पढ़ती हुई उठ बैठी। जिन कहने लगा, मानसगंध मानसगंध, यानी आदमी की बू आ रही है, जरूर आज कोई आदमी इस बाग में आया है। औरत बोली, तुम बेवकूफ़ हुए हो क्या? 20 साल हो गए तुम मेरे माँ बाप से मुझे छुड़ा कर लाए हो। मैंने जब से किसी आदमजात को नहीं देखा, देखना तो दूर की बात, मैंने किसी इंसान की आवाज़ तक नहीं सुनी। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? जिन बोला, ज़रूर कोई आदमी है, मैं कभी नहीं मानूंगा, ज़रूर यहाँ कोई आदमी है। वो औरत बोली, तुम्हें तो मालूम नहीं क्या हो गया, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो जाकर सारा बाग देख डालो। देव ने ऐसा ही किया और जब वो थक हार कर आया तो कहने लगा, अच्छा अब तुम खाना खाओ। जिन औरत को खाना खिलाकर वापस चला गया और इसी तरह इसका सर तलवार से काट कर छीके पर रख गया।
लड़का जो मक्खी बना हुआ था औरत को जिंदा करने की तरकीब अब देख चुका था। जिनके चले जाने के बाद वो बाहर निकला, इसी तरह इसने औरत का सर जोड़ा और सिराने और पांति की छड़ियां बदल डालीं। सर जुड़ते ही औरत उठ बैठी और बोली, ए खुदा के बंदे, तू यहाँ क्यों आया है और क्यों अपनी जान गंवाने के पीछे पड़ा है? ये जिन तुझे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेगा। जा बाबा, चला जा अभी। जब मेरा ब्याह हुआ और मैं अपनी ससुराल जा रही थी तो रास्ते में से ये जिन यहाँ उड़ा लाया मुझे। तब से मैं इसकी कैद में हूँ। लड़का बोला, तुम क्यों मुझे चले जाने को कह रही हो? मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। वो औरत कहने लगी, तुम मुझे किस तरह ले जाओगे? ये जिन तो मुझे हरगिज नहीं छोड़ेगा। शहजादे ने जवाब दिया, अब के जिन आए तो तुम मुझसे ये पूछना कि अच्छे मियाँ, अगर खुदा ना करे तुम मर गए तो मैं सारी उम्र यूं ही गर्दन कटी पड़ी रहूंगी और मेरी उम्र बर्बाद होगी। तुम ये तो बताओ कि तुम्हारी जान किस चीज़ में है। जब वो बताएगा तो मैं उसके बताए हुए पते पर जाकर उसकी जान निकाल लूँगा। उस औरत ने कहा, अच्छा। इतने में फिर उसी तरह की आंधी आई और बुरी बुरी हैबतनाक डरावनी आवाज़ें आने लगीं। उस लड़के ने जल्दी से औरत का सर काट कर उसी छींके में रख दिया और फिर वो मक्खी बनकर उसके पलंग के नीचे निवाड़ में छुप गया। जिन आया और फिर कहने लगा, मानसगन मानसगन। वो औरत बोली, मियाँ, तुम्हें वहम तो नहीं हो गया? यहाँ कोई आदमी नहीं। आओ बैठो, खाना खाओ। खाना खाने के बाद इधर उधर की बातें की। फिर वो औरत कहने लगी, अच्छे मियाँ, अगर खुदा ना करे तुम मर जाओ तो मैं इसी तरह सरकटी पड़ी रह जाऊंगी। मेरी उम्र तो यूं ही बर्बाद हो जाएगी। ये तो बताओ कि तुम्हारी जान किस चीज़ में है? जिन बोला, अजी मुझे कौन मार सकता है? मेरी जान कोई नहीं निकाल सकता। मेरी जान बड़ी मुश्किल जगह में है, किसी की मजाल नहीं जो वहां तक पहुंच सके। औरत बोली, आखिर बताओ तो सही किस चीज़ में है आपकी जान? जिन बोला, यहाँ से 7 दरिया पार एक दरिया लहू का है। उस दरिया के पार जाकर एक ताड़ का दरख्त है। इस पर एक तोते का पिंजरा टंगा हुआ है। अगर कोई इस तोते को मार दे तो फिर मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन ऐसी जान जोखों की जगह पहुंचने की हिम्मत किसमें है? इसके बाद वो और बातें करने लगा। फिर उसी तरह औरत का सर काट कर छीके में रखा और वहां से चला गया। शहजादा बाहर निकला और कहने लगा, अच्छा अब तो मैं जाता हूँ और जिनकी जान निकाल कर आता हूँ, फिर तुम ज़रूर मेरे साथ चलोगी। औरत ने कहा, वहाँ तक तो जाना बहुत मुश्किल है। लड़का बोला, मेरा खुदा मालिक है, वो ही मुझे पार पहुँचा देगा। ये कहकर इसने औरत का सर काटा और चला गया। वो बड़ा लड़का तो पहले ही शहजादे से छुपकर चला गया था। शहजादा दरिया में अल्लाह का नाम लेकर कूदा और हाथ मारता और 7 दरिया पार करता हुआ लहू के दरिया के पास जा पहुंचा। लहू का दरिया पार करके वो ताड़ के दरख्त पर चढ़ा तो उस तोते ने खूब जोर जोर से गुल मचाना शुरू कर दिया। उस तोते की आवाज़ से इतनी जोर की आंधी आई कि वो दरख्त हिलने और बड़े जोर से झूमने लगा। ये जल्दी जल्दी ताड़ के ऊपर चढ़ा। वहां पहुंचकर उस तोते को जल्दी से पकड़कर उसकी टांगें चीर डालीं। तोते का मरना था कि उस देव की बहुत मोटी और लंबी लाश वहां आन पड़ी। इसने जिन के कान काटे, उसकी नाक भी काट कर रुमाल में बांध ली और वापस चल पड़ा। वापसी पर वो ना दरिया था ना वो इतना लंबा जंगल। वो जल्द ही वापस आ गया और उस औरत से कहने लगा, लो अब चलो, अब तो ज़रूर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। औरत ने कहा, मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम उसे मार आए हो। क्या तुम उसके मरने की कोई निशानी लाए हो? शहजादे ने कहा, हाँ, लो, मुझे तो याद भी नहीं रहा था। लो, ये उसके कान और नाक हैं। देखो, अब तो तुम्हें यकीन आ गया। औरत बोली, हाँ, लेकिन अभी एक और शर्त है। वो ये कि मेरी बहन को एक और जिन उड़ाकर ले गया है, उसको भी उस आफत से छुड़ाओ। शहजादा बोला, मुझे तो नहीं मालूम वो कहाँ रहती है। तुम मुझे इसका पता बता दो और मेरे साथ चलो। औरत बोली, ठीक है। ये कहकर दोनों दरिया से बाहर निकले और चलते चलते इस औरत की बहन के पास पहुंचे। वहां जाकर क्या देखते हैं कि उसकी बहन बेखबर सोई पड़ी है। वो औरत उसके पास पहुंची, लेकिन शहजादा एक झोंपड़ी में ठहरा रहा। वो औरत अपनी बहन को जगाकर कहने लगी, उठो बहन,
तुम अभी तक सोई हो? उसकी बहन बोली, क्या करूं, जब तक वो जिन सोता है तो मैं भी सोती हूँ। वो जिन 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है, इसलिए मैं भी सो जाती हूँ। तुम मेरे पास कैसे आ गईं? उसने अपना सारा किस्सा सुनाया और कहा, एक शहजादा बड़ा नेक बख्त है, मुझे उस जिन से छुड़ा कर लाया है। वो जिन तो मर गया, अब वो शहजादा तुम्हारे जिन को भी मारने आया है। अब वो जिन जब तुम्हारे पास आए तो तुम मुझसे ये कहना कि मियाँ, अगर खुदा ना करे तुम्हें कोई सोते वक्त मार जाए तो मैं क्या करूँगी? यहाँ कोई आदमी भी नहीं आता जो मुझे यहाँ से निकाल कर मेरे माँ बाप तक पहुँचाएगा। मैं तो रो रो कर मर जाऊँगी। मुझे ये बताओ, तुम्हारी जान किस चीज़ में है? बहन ने कहा, अच्छा अब तुम जाओ, शायद जिन ना आ जाए, क्योंकि उसके आने का वक़्त है। वो औरत वापस आ गई और शहजादे को बता दिया। उस औरत की बहन ने अपनी बहन की बताई हुई बातें जिन से पूछीं। उस जिन ने भी इसी तरह जवाब दिया कि मेरी जान बड़े अज़ाबों में है, किसी को इतना हौसला नहीं कि वहाँ पहुँचे। कई पहाड़ों के ऊपर से एक जंगल है, इसमें एक बड़ा ऊंचा खजूर का दरख्त है। उसकी जड़ में 2 गज नीचे एक संदूकचा है, उसके बीच में एक डब्बा है, डब्बे के बीच में एक डबिया है, इसमें काला भंवरा है और इस भंवरे में मेरी जान है। अगर कोई उस भंवरे को मार दे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन इतनी जुर्रत किस में हो सकती है? फिर थोड़ी देर बाद वो जिन चला गया और वो औरत उसके पास आई और पूछा, बताओ क्या पता बताया? उसने सारा हाल अपनी बहन को सुना दिया और उस औरत ने जाकर शहजादे से सारी बात बता दी। शहजादा कहने लगा, बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ। ये कहकर शहजादा चला गया। हाय बंधुरा, আমার নাম কৌশিক মণ্ডল, আমার বাড়ি কলকাতায়। আমি জুপি অ্যাপের সম্বন্ধে আমার বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারি। তারপর আমি ভাবলাম और उसी जंगल में पहुंचा। उसे वही खजूर का दरख्त मिला। इसने उसको जड़ से खोदा और फिर इसके नीचे से संदूकचा निकाला और संदूकचे का निकलना था कि बड़े जोर से आंधी आई और इस कदर अंधेरा हो गया कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। शहजादे ने हिम्मत करके वो डबिया निकाली तो आंधी का इतना जोर हुआ कि वो खजूर का दरख्त जमीन से लग लग जाने लगा और हर तरफ अंधेरा गुप हो गया। शहजादे की जेब में एक बड़ा सा हीरा था। उसकी रोशनी में इसने उस भंवरे को जमीन पर फेंक कर मसल दिया। इस भंवरे के मरते ही जिन की एक बहुत ही लंबी मोटी और भारी लाश धम से जमीन पर आ गिरी। शहजादे ने उसकी भी नाक काटी, कान काटे और वहां से चला गया। अब वापस आने पर ना वो इतना लंबा जंगल था, ना वो ऊंचे पहाड़ थे। वो जल्द ही उस औरत के पास जा पहुंचा। वहां से इन दोनों को लेकर अपनी माँ के पास आया। वो लाल उस बड़े लड़के के हाथ बादशाह को भेजे। बादशाह ने वो लाल महल में अपनी बेटी के पास पहुंचा दिए। शहजादी ने वो लाल अपने रेशम में पिरोकर गले में पहन लिए और फिर अपने बाग में चली गई और सहेलियों से कहा, लो अब मैं वो लाल भी पहन आई हूँ। सहेलियां बोलीं, लाल पहने तो क्या पहने, हम तो जब जाने जो इस लाल के लाने वाले लड़के से ब्याह करो। शहजादी फिर अपने महल में वापस आई और उसी तरह मुंह बसोर कर लेट गई। ना खाना खाया, ना पानी पिया। उसकी देखभाल करने वाली अम्मा बेगम के पास गई और कहने लगी, पाशा बेगम, शहजादी उसी दिन की तरह फिर उदास हैं, आप चलकर उनको तसल्ली दें। बादशाह बेगम आई और अपनी बेटी से बोली, मेरी जान प्यारी बेटी, तुम क्यों उदास हो? अगर किसी ने मारा हो तो उसके हाथ कटवा दूं, अगर किसी ने कुछ कहा हो तो उसकी जान निकलवा दूं, कुछ तो बताओ। शहजादी ने अपनी माँ से कहा, अम्मा जान, मैं जो कुछ कहूँगी आप उसको हरगिज पूरा नहीं कर सकेंगी। माँ ने कहा, नहीं, मैं ज़रूर पूरा करूँगी। शहजादी बोली, तो अम्मा, जो आदमी ये लाल लाया है उससे मेरी शादी हो जाए, मैं जब ही कुछ खाऊंगी और जब ही पानी पीऊंगी। अम्मा ने कहा, बेटा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी 15-16 दिन में तेरी शादी कर दूंगी। ये कहकर बेटी के पास से वापस आई और बादशाह को कहला भेजा कि जो शख्स लाल लाया था उससे शहजादी शादी करना चाहती है। बादशाह ने बड़े लड़के को बुलाया और पूछा, ये लाल तूने किससे लिया था? उसने कहा, हमारे घर के करीब ही एक औरत अपने लड़के समेत रहती है, उसके लड़के से मैंने ये लाल लिया था। बादशाह ने कहा, अच्छा,
उसको बुलाओ। वो लड़का गया और शहजादे को बुला लाया और बादशाह के हुजूर में हाजिर करके कहा, ये लड़का है जिससे मैंने वो लाल लिया था। बादशाह ने उसकी ज़ात पूछी। लड़का बोला, जनाब जो हुजूर की ज़ात वो मेरी ज़ात। मेरा बाप फलां मुल्क का बादशाह था। और इसी तरह अव्वल से आखिर तक सारा हाल बादशाह को कह सुनाया। जब बादशाह को ये मालूम हुआ कि ये भी किसी मुल्क का शहजादा है तो बादशाह बड़ा खुश हुआ और अपनी लड़की की शादी उससे कर दी। जब दोनों का ब्याह हो गया तो शहजादी फिर बाग में गई। अब उसकी सहेलियों ने कहा कि हाँ, अब तुम बहुत अच्छी लगती हो। फिर दोनों मियाँ बीवी आराम से रहने लगे। शहजादी की माँ को भी महल में बुला लिया गया। बादशाह का कोई लड़का ना था, इसने अपना सारा मुल्क शहजादे को दे दिया। फिर वो शहजादा बादशाह बन गया और वो अपनी शहजादी के साथ खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारने लगा। उन दोनों औरतों के पते मालूम करके उन्हें अपने अपने घर पहुंचा दिया गया और वो भी हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगीं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने के लिए देखते रहें GN स्टोरी TV। शुक्रिया।